اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام پر دھیان و گیان کریں، میں چاہوں گا کہ ہم بھرپور تالیاں بجا کر جتنی بھی مائیں اس گرجا گھر میں موجود ہیں، ہم سب کو ماؤں کا دن جو ہے اس کی مبارکباد پیش کریں۔ مسیح خدا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے کلام پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کا کلام دو باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک، خدا ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، اور دوسری، خدا یسوع مسیح وعدہ کرتا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا وکیل بھیجے۔ تو آج ان دو باتوں پر ہم دھیان و گیان کریں گے اور آخر میں ہم ماؤں کے عالمی دن پر بات چیت کریں گے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا محبت ہے، وہ محبت کا منبع ہے، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری خوشی چاہتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہم سب کی نجات چاہتا ہے، وہ ہم میں سے کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور خدا کی محبت جو ہے اس کا اگر اندازہ لگانا ہے یا اس کو اگر دیکھنا ہے، اس کا تجربہ کرنا ہے، تو ہم خدا یسوع کی ذات سے کر سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خدا کی محبت کا ثبوت۔ خدا کی محبت جو ہے وہ لازوال اور لامحدود ہے، بغیر کسی مطلب سے، بغیر کسی مطلب۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور پیار کرنا اس کی ضد ہے، اس کا جوہر ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے انسانوں سے پیار کرنا، اور پیار بھی اس انتہا تک کہ ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی دنیا کے لیے بخش دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت، لازوال محبت۔ اور خدا کی محبت یاد رکھیں کہ لازوال ہے اور لامحدود ہے۔ کسی ایک مذہب، قوم، فرقے یا کسی ایک گروپ، کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی محبت میں دنیا کا ہر انسان شامل ہے، خواہ پھر اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ خدا کی محبت جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، وہ نیکوں کے لیے بھی وہ ویسے ہی انہیں پیار کرتا ہے اور گناہگاروں سے بھی ویسے ہی پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ ہمیں پیار کرتا ہے تو ہم بھی اس سے پیار کریں۔ قرآن یسوع سے فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو۔ تو خدا ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے، پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی محبت بغیر کسی مطلب، بغیر کسی مقصد کے، اسی جدوں اپنے ال ویکھنے ہیں، پوپ بینیڈکٹ 16 پوپ فرانسس تو پہلے جڑے پوپ سن 2005 دے وچ انہاں نے ایک
ਮਰਾਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਐਨਸੀਕਲਿਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। और इसमें उन्होंने मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। मोहब्बत दो दोस्तों में भी हो सकती है, मोहब्बत मियाँ बीवी में भी हो सकती है, मोहब्बत जो है वो बच्चों और वालिदैन में भी हो सकती है, हमें मोहब्बत किसी जानवर से भी हो सकती है, किसी परिंदे से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी खाने पीने की चीज से भी हो सकती है। लेकिन एक परिंदे या जानवर से मोहब्बत में, किसी खाने पीने की चीज से मोहब्बत में और इंसानों से मोहब्बत में फर्क है। और वो बेनेडिक्ट फरमाते हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो लफ्ज जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है वो है मोहब्बत, सबसे ज्यादा। लोग मतलब निकालने के लिए मोहब्बत करते। सिंपल इंग्लिश का एक लफ्ज है आई लव यू। कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस लफ्ज का बहुत मिसयूज आज के वक्त दौर च हो गया। इंसान अपना पर्सनल मतलब कढ़ण वास्ते किसी को भी कह देता है। एक ते जो सच्चा प्यार है ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਸੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, बड़ा अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है कि दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार के करते जालिम दुनिया का। बड़ा अच्छा किसी ने गाना गाया कि दुनिया मतलब दी है, मतलब होंदा है ते कहते हैं तुहानू प्यार है करने आ, जे मतलब नहीं ते कोई प्यार नहीं, मतलब निकल गया ते प्यार भी खत्म हो गया। खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत जेड़ी कुर्बानी मांगती है। मैं जिवें मैं तुहानू प्यार करना, मैं ते तुहाडे वास्ते कुर्बानी दित्ती, मैं ते तुहाडे वास्ते तुहानू माफी दा दर्श देना, मैं ते तुहानू प्यार दा दर्श देना, कबूलियत दा दर्श देना। जिवें मैं प्यार कीता इंज ही प्यार करो दूसरिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ शर्त है। दूसरी गल यीशु मसीह कहते हैं कि जे तुसीं मैनूं प्यार करदे जो ते फिर मेरे ताबेदार रहो, मेरे हुक्मां ते भी अमल करो। मोहब्बत का एक तकाजा है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤਾਬੇ ਵਿੱਚ फरमाबरदार है अपने बाप का, सारी जिंदगी बाप की मर्जी पूरी की है। प्यार जो वही दर्श अपने शिगिर्दां को देता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। अनकंडीशनल लव, बगैर किसी मफाद के वो प्यार करता है जो मैं तुमसे करता हूं। और जैसे मैं अपने बाप का ताबेदार रहा, वफादार रहा, तुम भी मेरे ताबेदार रहो
मेरे साथ वफादार रहो और मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं यसू ना बड़ा प्यार करना, मैं खुदा ना बड़ा प्यार करना, मैं तो हुक्म भी मानना, अपने भैन भरावां नाल नफरत रखे, अपने हमसाए नाल नफरत रखे, तो वो झूठ मारता है, झूठ बोलता है, क्योंकि वो सच नहीं बोलता, वो मोहब्बत खुदा नाल सच्ची नहीं। इस वास्ते खुदा सानू सच्ची मोहब्बत एक दूसरे नाल करन दा दर्श देता, जिहड़ी बगैर किसी मतलब, बगैर किसी मकसद, बगैर किसी लालच दे, जिहड़ी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ये मोहब्बत सानू ताबेदारी सिखाती है। यसू कहता कि मेरे ताबेदार रहो तो मेरे हुक्मां ते अमल करो, तो तां तुसीं मेरे प्यार में कायम रह सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा जड़ा अहम पहलू, खुदा यसू मसीह वादा करते हैं, जे तुसीं मेरे ताबेदार रहोगे, मेरे हुक्मां ते अमल करोगे, तो मैं तुहानू यतीम नहीं छड्डांगा। मैं बाप को दरखास्त करांगा कि तुहानू दूसरा वकील भेजे। दूसरा वकील कौन है? रूह कुदस से। तो फिर पहला वकील कौन सी? दूसरा वकील रूह कुदस से, तो पहला वकील कौन? बोलो, खुदावंद यीशु मसीह है। पहला वकील खुदावंद यीशु मसीह है। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि खुदा के पास हमारा एक वकील है, खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारी दरखास्तें करता है, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर कफारा दे दिया, अपनी जान का फिदिया दे दिया। तो पहला वकील खुदावंद यीशु मसीह है, दूसरा वकील रूह कुदस है, रूह अल हक है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, पाक रूह की सूरत में तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, और वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है और क्या बोलना है। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, आज हम माओं का आलमी दिन मना रहे हैं। खुदा के बाद इस दुनिया में मोहब्बत और कुर्बानी की अगर कोई आला मिसाल या नमूना मिलता है तो वो मां है। मां जिन्नियां कुर्बानियां देती है, उन्नी कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, ना ही कोई मां का कर्ज ही पार सकता है। कोई कहे ना कि मैं सारे जहान दौलत लिया के मान दे के अपना कर्ज ला लांगा, फिर भी नहीं ला सकता। इन्नियां कुर्बानियां जिहड़ी इन्नी जदोजहद एक मां अपने बच्चों वास्ते करती है। अक्सर तुसीं वेखिआ है कि रक्शियां दे पिछे, गड्डियां दे पिछे, बसां दे पिछे, डालियां दे पिछे कुछ अल्फाज लिखे होंदे ने कि ये सब मेरी मां की दुआओं के वसीले से। फिर लिखा है मां की दुआ जन्नत की हवा। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਲੋਕੀ अपनी मां ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ।
बच्चे को आज के बच्चे ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे जीजो, मां एक ऐसी हस्ती है जिहड़ा इस दुनिया से खुदा का दूसरा रूप है। कुर्बानी की दूसरी मिसाल खुदा को बाद मां है। मोहब्बत की दूसरी मिसाल मां की मोहब्बत से लालच नहीं जाओ, अजमाई गल मां की मोहब्बत में लॉस होती है। एवं नहीं किसी ने कहता कि खुदा को बाद दुनिया से मोहब्बत की अगर कोई दूसरी मिसाल है तो मां है। कुर्बानी नहीं होती, मोहब्बत है। मां की मोहब्बत हमेशा बच्चों वास्ते लाजवाब महदूद होती। मां भावें कितने भी बच्चे क्यों ना हो, वो सारे बराबर ही प्यार करती, सारे वास्ते खिच रखती, सारे की फिक्र करती। खुदा का कलाम भी सानू सिखाता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानत है कि वो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। तो साहब ला लो, जेड़ा मां की इज्जत करता है उन्होंने कभी पैसे ढेले दिया, कभी भी पैसे ढेले की कमी नहीं आएगी। ये याद रखो, मेरी अपनी आजमाई हुई मिसाल है। मैं अपनी मां को खर्चा देना वा जिन्ना भी मेरे को हो सके। मेरी मां को दुआवां देनी, हुण वडेरे ने 74 साल उन्हां दी उम्र है ते मां नूं जदों तुसीं सारी जिंदगी मां दे घर खर्चा दिता है प्यो को लैके या अपने कोलों, ते जदों मां प्यो नूं जरूरत होए ते उदों असीं अपनी जेबां घुट-घुट के बईए, ये ते फिर माड़ी गल। इस वास्ते अपनी मावां का एहसास करो, उन्हां दा ख्याल रखो। इस दुनिया से जिन्नी देर तक तुहाडे कोल ने उन्हां नूं प्यार करो, उन्हां दी इज्जत करो, उन्हां दा एहतराम करो। कहते हैं कि इट्टां दा घर ते बन सकदा है, एक खाली कमरा तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने घर मां ही बनाती है। वो उंज ते जिधर जेड़े घर मां नहीं ना होंदी, वो घर का हाल देखो जा कुछ अजड़िया लगता। इस वास्ते अज अगर मावां कोल ने तो इज्जत करो, एहतराम करो। कल रोण का की फायदा है? अज जो मौका खुदा दे रहा है तो अज उन्होंने इज्जत करो, एहतराम करो, उन्होंने कदर करो, ताकि कल नूं तुहाडे बच्चे तुहाडी कदर करन, तुहाडा एहतराम करन। ते आखिर विच मावां जिन्नियां भी इत्थे बैठियां ने, ये जिहड़ियां मावां सानूं लाइव सुन रहीआं ने या जिहड़ियां बाद च सुणनगियां, उन्हां दी नज़र एक शेयर करना चाहना वा। बारिश तेज हवा ते पत्थर, बारिश तेज हवा ते पत्थर सब दी अपनी थां हुंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आकर छां हुंदी है। भैन भरा अब्बा ते पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने। पूरी दुनिया घूम के वेखी, मां ते आखिर मां होती है। आप सबको माओ का आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया।